Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have started our chapter number 9 and chapter number 9 it is related to fundamental rights, fundamental duties and directive principles in the constitution. So we have started our first topic and it is fundamental right. So in the fundamental right we have completed two important right. First of all, right to equality and second, right to freedom. And in the today's lecture, first of all we will discuss about right against exploitation. So let's get start the topic. Okay, so let's learn about right against exploitation. So the main objective of the constitution is to see any person does not suffer exploitation at the hands of other person and exploitation free society is established. So first of all exploitation का मीनिंग क्या होता है? शोषण. मीन्स अगर हम अदर पर्सन को कुछ हैरान कर रहे, उसको कुछ नुकसान उसका करा रहे, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. उसको हम अगर डिस्क्रिमिनेट भी कर रहे, इट इज ऑल्सो नॉन एज एक्सप्लॉइटेशन. सो दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू दिस राइट. सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि any person does not suffer exploitation at the hands of other person. अदर पर्सन के द्वारा उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए एंड एस्टाब्लिश्ड एक्सप्लॉइटेशन फ्री सोसाइटी. ये हमारा मेन मोटिव है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का. ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रेजरी, स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर आर बैंड. और for the removal of exploitation, our government have decided that human trafficking, drudgery, slavery, forced labor, this all activity are banned in our India. The violation of this right is punishable offense. अगर कोई इस right का violation करेगा तो उसको punishment भी दी जाएगी. Illegal trade of children and women, forced labor and imposed slavery, work without pay and all drudgery system has to be ended through this right. मीन्स इस राइट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी सिस्टम को हमने बैन किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलीगल ट्रेड ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन. सेकंड, फोर्स्ड लेबर और imposed slavery. Then third, work without pay. And fourth, the old drudgery system. To take work from any person without paying them or paying them less than minimum wages, forced or imposed labor is a punishable act. मीन्स अगर कोई काम के लिए हम कोई पर्सन को काफ़ी कम पैसे देते हैं और उसके उसको फ्री में कोई भी काम करवाते हैं तो इट इज़ पनिशेबल एक्ट. हमें मिनिमम वेजेस तो उसको प्रोवाइड करना ही होगा. So any child under the age of 14 cannot be made to work in a factory, mine and any dangerous profession, garage, hotel or cannot be employed as a household servant. Means this is the Prohibition of Child Labor Act. Means 14 एज तक कोई भी चाइल्ड है, ये कोई फैक्ट्री, माइन, एनी कोई डेंजरस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ नहीं चाहिए. गैरेज, होटल और हाउस होल्ड सर्वेंट होगा तो ये भी इनलीगल है. मीन्स 14 ईयर तक चाइल्ड को कंपलसरी एजुकेशन लेना है, अदर कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है. सो अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट all these are punishable offense. So चाइल्ड लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग ये सभी एक्टिविटी पनिशेबल होगी. एंड मैंडेटरी सर्विसेज कैन बी sought from any person for the purpose of public welfare of the state military services in any fields respective of religion, gender, caste, class,
with or without remuneration. So मैंडेटरी सर्विस मीन्स कोई एक पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर अगर हमें किसी को काम करवाना है इन द फ्री में भी, तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा लॉ लागू नहीं होगा, मीन्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का कोई मामला नहीं होगा। कुछ ऐसी मैंडेटरी सर्विसेज है जहाँ पे सभी को काम करना ज़रूरी है, अगर पैसे मिलेंगे और ना भी मिलेंगे। तो ऐसी सर्विसेज पे अगर हम काम करते हैं, अगर हमें मिनिमम वेजेस से कम पैसे भी मिलते हैं, तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के केस में नहीं होगा। Then let's move to next right, and it is right to freedom of religion. So any citizen of India can follow any religion of choice, can promote and propagate the same is mentioned in the provision of the Constitution of India. As we all know that India is a secular country. That's why government cannot promote any religious activity, any particular religious activity. So कोई भी citizen, it is free to propagate or promote their religious activity. कोई भी citizen कोई भी religion को follow कर सकता है, कोई भी religion को promote कर सकता है, उसको propagate भी कर सकता है. This is our fundamental right. But this right is to be enjoyed within permissible limits so that it does not affect the freedom of public administration, morality and health of the society. But इसमें भी कई सारी लिमिट्स है। मीन्स हमारे पास चॉइस है कि हम कोई रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, बट दिस राइट इज टू बी एंजॉयड विद इन परमिसिबल लिमिट्स। इसमें भी कई सारी लिमिट्स है। अगर हम किसी को ज़्यादा राइट्स दे देते हैं, सो इट विल अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मॉरलिटी एंड हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। दैट्स वाई इस पे लिमिट लगाना काफ़ी ज़रूरी है। द रिलीजियस गैदरिंग्स, ऑफरिंग्स एंड प्रेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। सो रिलीजियस गैदरिंग हम कर सकते हैं, ऑफरिंग प्रेयर्स हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट्स नहीं होगी। Then the state of India does not have any religion of its own, and Indian state is not run as per the principles of any religion or sect. As we all know that India is a secular country. That's why the state of India does not have any religion of its own, and the Indian state is not run as per the principles of any religion or sect. स्टेट ऑफ इंडिया कोई भी रिलीजन को नहीं मानती, एंड इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन भी नहीं है। मीन्स कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेस के ऊपर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ नहीं बने। द ऑल लॉ आर इक्वल टू द ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो द स्टेट कैन नॉट इंटरफियर इन द रिलीजियस मैटर्स और रिलीजियस बिलीव्स ऑफ एनी ग्रुप। मीन्स क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि स्टेट कैन नॉट इंटरफियर इन द रिलीजियस मैटर्स। रिलीजियस मैटर और रिलीजियस बिलीफ पे कभी स्टेट इंटरफियर नहीं करेगा। एंड द रिलीजियस ग्रुप्स हैव बीन गिवन द freedom to establish any religious organization and can manage and administer them for religious and philanthropic aims. मीन्स कोई भी रिलीजियस ग्रुप कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, उसको एडमिनिस्टर भी कर सकता है। यहाँ पर कोई इनलीगल एक्टिविटी नहीं होगी। मीन्स गवर्नमेंट कभी मना नहीं करेगी कोई भी रिलीजियस ग्रुप को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। देन द स्टेट कैन नॉट यूज द फंड्स collected through public taxes or public fund for the benefit and development of any specific religious or sect. स्टेट कभी भी अपने फंड का यूज़ कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को बेनिफिट पहुंचे, उसका डेवलपमेंट हो, इसीलिए नहीं करेगी। अगर गवर्नमेंट को हेल्प करनी है तो सभी रिलीजन को सेम प्रपोर्शन में हेल्प करनी होगी। एंड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रनिंग ऑन गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट इम्पार्ट रिलीजियस एजुकेशन
or compel the students to participate in any religious education or attend any religious meet. मीन्स गवर्नमेंट स्कूल होगी या फिर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड नहीं करेगी अगर कोई स्कूल है जो रिलीजियस एजुकेशन दे रहा है, या फिर कोई स्टूडेंट्स को कंपलसरी रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है इन द स्कूल, तो ऐसे स्कूल पे गवर्नमेंट कभी भी ग्रांट या फिर डोनेशन नहीं देगी. सो दिस इज अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. Then let's move to next topic, and it is cultural and educational rights. So people of various religions, various languages and cultures live in India. The people of India have a right to preserve their language, script, cultural identity and ethnicity. Means, as we all know that there are many religions in our India. There are many languages in our India and there are many cultures in our India. But the speciality of India is unity in diversity. Means भले ही diversity हो but हम सब unite है. So the people of India have a right to preserve their language, script and cultural identity. Means हमारे इंडियन पीपल के पास ये राइट्स प्रोवाइड है कि आप अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी एंड एथनिसिटी को प्रिजर्व कर सकते हो. एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन which rely on the government grant cannot deny admission on the grounds of religion, caste, creed, language or any other reason. Means कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर डिपेंडेड है, ये कभी भी रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेगा. कास्ट के बेसिस पे ऊपर ये इंस्टीट्यूशन नहीं होनी चाहिए. कोई एक लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करनी चाहिए. मीन्स गवर्नमेंट ग्रांट कोई भी स्कूल है, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिलीजन. If any individual appeals to vote on the grounds of religion, caste or language, then it is considered as malpractice as per the Article 123. Means कोई एक लीडर कोई एक रिलीजन के बेसिस के ऊपर वोट की अपील करता है, कोई कास्ट कोई लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वोटिंग की अपील करता है इन द प्रचार, सो ये भी एक माल प्रैक्टिस है. मीन्स इट इज़ इनलीगल. हमें रिलीजन के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वोटिंग भी नहीं करना है. वी कैन नॉट कास्ट अवर वोट, वी कैन नॉट elect our leaders on the basis of religion, caste and language. So any of the state can frame a law and provide the right to citizen to form and manage any educational institution based on cultural and linguistic minority. So कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए, मीन्स कोई एक कल्चर और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को प्रमोट करने के लिए ये अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट कर सकता है. बट मैंने आपको आगे भी बताया था कि गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलेगी. यहाँ पर आपको इंडिविजुअली पैसा स्पेंड करना होगा इन योर इंस्टीट्यूशन. देन द स्टेट shall not discriminate in giving educational grants or educational scholarship from the state fund to any of the linguistic or religious minority institution. अभी हमने देखा था कि स्टेट कभी भी कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन को ग्रांट या फिर डोनेशन प्रोवाइड नहीं करेगी कि जहाँ पर कोई एक स्पेशल रिलीजियस एक्टिविटी हो रही है, कोई लिंग्विस्टिक एक्टिविटी हो रही है. So if the state desire to take over or confiscate the property of minority institution, then it can do so only after giving proper returns. अगर सपोज कोई एक ऐसा सिचुएशन हो गई कि हमें कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट को परचेज करना होगा, बैन करना होगा या फिर कॉन्फिस्केट करना होगा, तो उसके रिटर्न में कुछ अच्छा रिटर्न
कुछ अच्छा मनी ये इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करना होगा। सपोज रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का कोई एरिया है, ये गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो उसके रिटर्न में गवर्नमेंट को भी काफ़ी अच्छा पैसा देना होगा। सो इन दिस वे important provisions in the context of educational institution have been made in the constitution। और ये सभी केसेस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉस बनाए गए हैं कि कैसे कोई रिलीजियस माइनॉरिटी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। Then let's move to next topic, and it is right to constitutional remedies। So no matter how many laws are framed or how many provisions are made for the fundamental rights, if they are not implemented well, then there remains no meaning of such freedom or right। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये सभी बातें लिखी गई है, मीन्स आपको कई सारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड भी किए गए, बट नो मैटर how many laws are framed, how many provisions are made for the fundamental rights, if these are not implemented well, अगर इसका implementation नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। मीन्स then there remains no meaning of such freedom or right। Therefore a provision has been made in the constitution for the implementation of these rights, and under it a writ in Supreme Court can be made for the violation of fundamental right। मीन्स अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो हमारे पास एक फैसिलिटी है रिट की, WRIT, रिट। ये रिट हम सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को बता सकते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट हमें इसका आंसर देगी, हमारे केस को एक्सेप्ट करेगी। सो राइट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो ये पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मीन्स हमारे जो राइट्स है इसका अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके अगेंस्ट हम रिट दाखिल कर सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट। So the Supreme Court plays an important role in protecting the fundamental rights। So you must remember the important role of the Supreme Court in the protection of fundamental rights। And for this, if the court finds it necessary, then it can give orders, instruction or decree। The apex court is vested with the power given by the constitution। Nobody can oppose it। If any person puts a complaint against any state or the for the violation of any fundamental right, then the Supreme Court can exercise its right। Means apex court in India, Supreme Court is the apex court, means upper level court। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कई सारे पावर हैं। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन सुप्रीम कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकता है कि मेरे ये राइट का वायलेशन हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट हमें इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेगी। सो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हैज़ कंसिडर्ड दिस राइट एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर has considered this right as soul of the constitution। The parliament can hand over the powers of giving such an order to any of the court। If the state legislative assembly frames any law which violates the fundamental rights or not in congruence of it, then the Supreme Court stop the state। Means Parliament is bind with the Supreme Court। मीन्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कोई ऐसा लॉ बनाता है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसको
स्टॉप भी कर सकती है, इसको रोक भी सकती है। Thus, this right provides an opportunity to any of the citizen to approach court for the violation of fundamental right. Means ये राइट के अकॉर्डिंग हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, फैसिलिटी मिलती है कि अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो हम हायर कोर्ट पे जाएंगे। The Constitution provides the fundamental rights to the Indian citizens. These rights are given against the government. The fundamental rights are applicable to all the citizens of all the times but can be suspended during the time of emergency. एक बात आपको याद रखनी होगी कि फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल टू द ऑल सिटीजन्स एट द ऑल टाइम्स। हर टाइम के लिए फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए एप्लीकेबल है, बट एक सिचुएशन याद रखना, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ये लागू नहीं होते। इमरजेंसी के टाइम के दौरान अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी होता है फिर भी हम कोर्ट पे नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट पे भी हमारी रीट को दाखिल नहीं कर सकते। सो एनी स्टेट कैन नॉट फॉर्म एनी लॉज which take away the fundamental rights of these citizens. Means कोई भी स्टेट ऐसा लॉ नहीं बना सकती जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। सो दिस इज अबाउट द राइट ऑफ constitutional remedies. So this is about our today's lecture. In this lecture we have discussed about 4 important fundamental rights. I hope you understood very well about all the points, all the topics, and if you have any doubts regarding these topics, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video, we will start our next topic, fundamental duties. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.